رات کا ایک ہونے والا ہے لیکن جی یہ ابھی تک نہیں ہے. آخر یہ میرے سے ایسا سلوک کر کیوں رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ان کا؟ میں بھی کب تک انتظار کروں ان کا؟ کیوں کیوں یہ کر رہے ہیں سب؟ آج تو پوچھ کے رہوں گی آ لینے دن کو. یہ کیا وقت ہے گھر آنے کا؟ آپ کو پتہ بھی ٹائم کیا ہے؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی آپ کا. اور یہ کیا آپ پھر نشے میں دودھ ہے اور یہ شراب کی بوتل کو لے کے رہیں گھر میں؟ ارے تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی کہ میں کہاں تھا، کیوں تھا، کیا کھا رہا تھا؟ ہاں تجھے کوئی حق نہیں بنتا پوچھنے کا. چل پیچھے اب. میں آپ کی پتنی ہوں. کیا میرے اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں جان سکوں کہ رات کے 1 بجے تک میرا شوہر کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا؟ ارے میں تجھے کچھ بتانا ضروری سمجھتے ہی نہیں تو کیوں بتاؤں گا؟ آئی بڑی پتنی. آپ کو کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی دکھی ہوں؟ اور آپ ایسا بیو کرے جیسے ہماری شادی کو عرصہ ہو گیا. ہماری شادی کو صرف 4 منتھ ہوئے اور میرے پاپا کو گزرے ہوئے صرف 1 منتھ. آپ کو چاہیے ایسے وقت میں میرا ساتھ دے، مجھ سے پوچھے کہ مجھے کچھ ہوا تو نہیں، کچھ چاہیے تو نہیں، میں کیسا فیل کر رہی ہوں. پتا ہے میں اپنے پاپا سے کتنا پیار کرتی تھی، لیکن آپ میرے ساتھ دینے کے بجائے مجھے مزید تکلیف دیتے رہتے ہیں. صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے تم ہر وہ کام کرتے ہو جو مجھے پسند نہیں. میں پوچھتی میرا قصور کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ کیا کمی ہے مجھ میں جو تم یہ سب کرتے ہو؟ تم جان بوجھ کے گھر میں شراب لے کر آتے ہو کیونکہ یہ مجھے پسند نہیں. ہاں صحیح کہا تو نے. کیا کر لے گی تو؟ ارے صحیح کہہ رہی ہے. میں جان بوجھ کے شراب گھر پہ لے کے آتا ہوں اور آئندہ کے بعد میں ہر وہ کام کروں گا جسے تجھے برا لگتا ہے، تجھے نفرت ہے. پلیز ایسا مت کریں. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میری بات سنیے. پیچھے ہو، پیچھے رہ اور آئندہ کے بعد میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا. ہاتھ پیچھے کر. ہاں کیسے گندے ہاتھ اپنے لگا رہی ہے مجھے. میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، کہتے تو پاؤں پہ پڑ لیتی ہوں، لیکن پلیز مجھے بتائیے میرا قصور کیا ہے؟ ایسا میں نے کون سا گناہ کر دیا جو میں آپ کی اتنی بری لگتی ہوں اور آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو مجھے برا لگتا ہے؟ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. کچھ تو بولے. مجھے اس طرح سزا مت دے، میں مر جاؤں گی. چلو ٹھیک ہے، پھر میری بات سنو. تمہیں یہ جاننا ہے نا کہ مجھے مسئلہ کیا ہے، میں کیوں تم سے نفرت کرتا ہوں اور دور بھاگتا ہوں، اور تم چاہتی ہو کہ سب ٹھیک بھی ہو جائے. تو میری ایک شرط ہے، اپنی ماں سے بولو کہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دے، نہیں بلکہ میرے نام کر دے. پھر ہی میں یہ ساری عادتیں چھوڑوں گا اور جیسے تم چاہو گی ویسے رہوں گا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہے؟ میری ماں کے پاس اس زمین کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اور آپ میرے پتی ہیں. آپ مجھے اس طرح پریشان نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے میرے ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں، لیکن آپ مجھے الٹا ٹارچر کر رہے ہیں. میری ماں کو اس طرح در بدر مت کیجیے. وہ کہاں رہیں گی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر دفعہ ہو جاؤ. آئندہ مجھے مت کرنا کہ یہ کرو وہ کرو. ارے یہ میری لائف ہے، میں اسے برباد کروں یا آباد، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جو مرضی کروں. ہاں آئی بڑی، میرے لیے اتنا تو کر نہیں سکی اور اس کے لیے میں عادتیں چھوڑ دوں اپنی. اور ویسے بھی میں نے صرف تم سے اس لیے شادی کی تھی کہ تمہاری ماں اپنی جائیداد میرے نام کر دے. ارے اکلوتا دماد اس گھر کا. کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہا ہوں. ایک تو تیرا باپ بھی چلا گیا، اب بھی تیری ماں کو چین نہیں. اتنا نہیں کہ ساری زمین جائیداد اپنے داماد کے نام کر دے، کم سے کم بیٹی تو سکھی رہنا. پر نہیں، تیری ماں اپنی خالہ کے ہاں چلے گی. ارے اگر وہاں پر اس نے سب کچھ اپنے خالہ کے بچوں کے ہاں کر دیا، نام نوم کر دیا، تو مجھے کیا ملے گا؟ ارے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے شادی میں صرف اس لیے جہیز نہیں لیا تاکہ بعد میں ساری پراپرٹی مجھے مل جائے، سب کی نظروں میں اچھا بن کے رہا. لیکن دیکھو کیا مل رہا ہے، ٹھینگا. دیکھو صاف صاف بات ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں میری پتنی بن کے رہو تو اپنی ماں سے ساری پراپرٹی میرے نام کراؤ، ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اس گھر میں رہتی ہو. تمہارا تو میں وہ اشر کروں گا کہ پوری زندگی یاد رکھو گی. ابھی تو آئے تھے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سنیے. آج تو نے یہ سوال کر لیا اور میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن آئندہ کے بعد مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرنا. مجھ سے سوال تبھی کرنا جب اپنی ساری جائیداد میرے نام کروا دو گی، ورنہ کوئی حق نہیں بنتا تجھے. میں کیا کروں؟ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے لالچی نکلیں گے، اتنے برے. ان لوگوں کو صرف دولت کی پڑی ہے. کہاں جاؤں میں؟ ابھی تو میرے باپ کو گزرے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، ان لوگوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دی. میرے پاس کون سے کروڑوں کی جائیداد ہے، چھوٹی سی پراپرٹی ہے میری ماں کے پاس. اگر میں نے وہ بھی ان کے نام کر دی تو میری ماں کے پاس کیا بچے گا؟ کہاں جائے گی وہ؟
कोई बेटा भी नहीं जिसकी खिदमत करे से पाल सके। मैंने आज तक अपनी माँ को ये बातें नहीं बताई, कैसे बताऊं? मेरी विधवा माँ आगे इतनी दुखी है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से और दुखी हो, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। मुझे अच्छे से याद है जब अपने बाप के मरने के बाद मैं अपने ससुराल वापस आई थी तो मेरी माँ ने मुझे कैसे कहा था। मुझे अच्छे से याद है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं लाइफ में, क्योंकि तेरा घर बस गया है। अब मैं अपनी जिंदगी सुकून से जी लूंगी, अब किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होगी। तू भी अपने घर में खुश रह। पर मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं कि मेरा घर बसने से पहले उजड़ रहा है। देखिए माँ, भी मेरी शादी को सिर्फ 4 महीने में और यहाँ पर अलहदा रहने की बातें भी हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ को दुखी नहीं कर सकती। उन्हें कितना शौक लगेगा जब वो सुनेगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, सुबह अपनी सास से बात करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो कोई ना कोई हाल तो लास्ट में निकालेंगी। वैसे भी वो बहुत अच्छी है और जब से मैं आई मैं उनकी कितनी सेवा भी करती हूँ। और वो एक औरत भी है, औरत होकर औरत का सुख जरूर समझेंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। माँ जी से बात करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है वो सिर्फ मेरा साथ देंगी और कोई ना कोई हाल तो निकाल ही लेंगी। फिर देखने सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, माँ जी से पूछ आती हूँ कि नाश्ते में आज क्या खाएंगी। वो उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। माँ जी, जैसा आपने कहा था ना रात को, मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। मैंने वही सब कुछ कहा जो आपने बोला था। मैंने उसे बता दिया है कि सारी जायदाद मेरे नाम करो, वरना तुम्हारे इस घर में कोई हिस्सा नहीं और ना तुम रह सकती हो। निकलती भी नहीं फिरो। अरे माँ, बस एक मरतबा सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए, फिर देखिएगा इस लुमड़ी को मैं कैसे बिल्ले लगाता हूँ। एक मरतबा जायदाद मुझे मिल गई, फिर तो इसका इंतजाम ऐसा करूंगी ना, कभी वापस नहीं आ सकेगी। ऊपर पहुंचा देंगे सीधा। वैसे भी ऐसी लड़की से मैं रह कर ना परेशान हो गया हूँ। मुझे इसके साथ रहना ही नहीं। सही कह रहा तू। बस एक मरतबा बहू की जायदाद तेरे नाम हो जाए, फिर तो हमारे मजे ही होंगे। बहू को लगाएंगे ठिकाने और मैं करूंगी तेरी दूसरी शादी, वो भी अमीर और इकलौते घर में। फिर तू ऐश करी। हाँ माँ, सही कह रहे, ऐसे ही करेंगे। मुझे खुद ही रहना इसके साथ। इतना बड़ा धोखा मैंने तो सोचा भी नहीं था कि माँ जी भी साथ में लेंगी। और इनकी कैसी प्लानिंग है। ऐसा नहीं चल सकता, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इन्होंने क्या समझ लिया मेरी जिंदगी इतनी फालतू की है जो मुझे ठिकाने लगा देंगे। अरे महारानी कहाँ रहेगी? चाय नाश्ता कब मिलेगा? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुझसे। कभी कोई काम ढंग से भी और जल्दी भी कर लिया कर, या फिर अभी तक पलंग तोड़ रही है तू। आई माँ जी। अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? क्या चाय नाश्ता नहीं करेगा? नहीं माँ, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। और वैसे भी ना, इस घर में रहने का मेरा मन ही नहीं करता और न कुछ खाने को। हाँ, किसी की मनहूस शक्ल देख लेना, अब कहाँ मन करेगा। जा रहा हूँ मैं। क्या करूँ मैं इस लड़के का? तंग कर रखा है। माँ जी, चलिए आपका नाश्ता। देखो बहू, ये रोज रोज की चिकित्सा ना मुझे घर में बिल्कुल नहीं पसंद। हर वक्त की बेसुनी, इससे बरकत बढ़ जाती है। तो तू मेरे बेटे की बात क्यों नहीं मान लेती? उसने कौन सा कुछ कह दिया है गलत? बहू, मैं कहती हूँ इसमें तेरा ही फायदा है। तू सोच के तो देख। तू एक मरतबा मेरे बेटे की बात मान ले, सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। उसके बाद देखना तो इस घर में महारानी बन के रहेगी। बस वो तेरी ही बात मानेगा। और अगर उसने उसके बाद कुछ किया तो मैं खुद अपने बेटे के साथ कह चुकी, कुछ नहीं करेगा तेरे साथ, बहुत प्यार से रहेगा। और वैसे भी मैं कहूंगी कि जब बहू की माँ ने सब कुछ तेरे नाम कर दे तो क्यों नहीं आराम से रहता? देख लेना, मेरी बात लास्ट में मानेगा। और वैसे भी वो तेरा पति है, पति के बड़े हकूक होते हैं। क्या तू अपने शोहर की बात इतनी सी मान नहीं सकती? उसने कौन सा कुछ गलत बात कह दी है? तू एक मरतबा अपनी माँ से बात तो कर। मुझे उम्मीद है तेरी माँ मना नहीं करेगी। अरे जान तेरे रिश्तों की नजाकत को, क्योंकि हर माँ चाहती है उसकी बेटी का घर बसे और अपनी बेटी की खुशी चाहती है। बस तू ये देख ले क्या कि अपनी माँ को तेरी माँ जट से हाँ कह देगी, फिर तुम दोनों खुशी खुशी रहना। और इसके बढ़कर क्या चाहिए मुझे या तेरी माँ को? अरे बहू, कुछ तो बोल। मम्मी जी, अगर आप अपने बेटे के कान खींच के सच में समझा सकती हैं, वो आपकी बात भी मान लेगा, तो अभी क्यों नहीं समझा सकती आप उसे समझाइए कि मैं उसकी पत्नी हूँ, उसके भी कुछ हकूक हैं। अरे आपने बाद में तो समझाया ना, पहले समझा ले। और आप नहीं चाहती कि घर में खुशगवार माहौल रहे? अभी से कह लेना उसको। जरूरी तो नहीं जब जायदाद मिलेगी तभी अच्छा माहौल होगा। क्या इज्जत और सुख के लिए मेरी माँ की जमीन जरूरी है? उसके बगैर इज्जत या सुख नहीं मिल सकता इस घर में मुझे। शर्म कर, चुप कर ले। हाँ, तुझे जरा शर्म नहीं? कैसे सास करके जबान से जबान चलाई जा रही है, कैसे कह रही है मुझे? अरे लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
मेरे बेटे ने तुझे इतना मारा पर तू अभी तक सुधरी नहीं। आप समझ आ रहा है मुझे, मेरा बेटा तेरे साथ बिल्कुल सही करता है। अरे तू इसी लायक है। हाँ, अभी आते ना दोबारा तो तेरी कुटाई लगाती हूँ ताकि तुझे दोबारा अकल समझ आए। बल्कि तुझे आज डंडा और जूते से मार पड़वाऊंगी। लगता है सही से धुलाई नहीं। हाँ, अभी से बताऊँ ना तू कैसे मेरे साथ जुबान चला रही थी तो यकीनन तुझे मार ही डालेगा जान से। और मैं तो चाहती ही हूँ, इतनी नकम्मी और मनहूस बहू मिली है मुझे, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले बहू, अगर तूने अपनी माँ की जमीन मेरे बेटे के नाम न करवाई तो उसने भी तुझे तलाक देनी है और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेनी है। फिर रहना रोती और कह देना मेरा घर हो गया खराब। फिर तेरा क्या ही होगा बहू, रह लेना फिर अपनी माँ के पास जाकर। हाँ, ऐसी जमीन का अपने पास रखकर क्या ही फायदा, सिर्फ तेरा घर उजड़ रहा। बेहतर नहीं कि पहले अपने पति के नाम कर दे, जब कहा कि बाद में तुझे कुछ नहीं कहेगा। तो माँ जी अभी कौन सा मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं जो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, इस चीज की मैं फिक्र करूँ। आपके बेटे और आपकी लालच ने मेरा सुकून और जिंदगी बर्बाद कर रखी है। उफ, इतनी तेज जुबान, कैसे जुबान चला के जा रही है मुझसे। तू जरा सब्र कर, तुझे लगता है अभी तक असर नहीं होता। तेरी तो आज मैं खाल हट जाती हूँ। अगर मैंने तेरी खाल ना दरवाई तो मेरे ना भी नहीं माने ही। अरे बेटा अच्छा हुआ तू आ गया। तुझे पता है आज क्या हुआ? तेरी पत्नी ने मुझसे इतनी बदतमीजी की, ऐसी जुबान चलाकर गई है कि तुझे क्या ही बताऊं मैं। क्या सच कह रही है माँ आप? लगता है इसके ज्यादा ही पार निकले। अभी जाकर इससे पूछता हूँ। हाँ, वो ही तो, जाकर अच्छी क्लास लेना कि आइंदा के बाद मेरे सामने जुबान न खोल पाए। अब आएगा मजा। ये भोग के समझते है खुद को। मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये कार्य क्या लेता है। हर मर्तबा मुझे मारता है, गाली गलौज करता है। अरे हाथ से तो उठाता है, किस हद तक जाएगा? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ से बहस करे? ये ले। आइंदा के बाद तूने मेरी माँ के साथ जबान दराजी की ना, फिर देखना मैं तेरा क्या असर करता। क्या पहले मारपीट काम करता था ये, जो अब आज भी पट्टियां पर आ रही है? आज तो हाथ दोगी, मेरा सारे बोल डाला। हाय, आँख में भी इतना दर्द है। मुझे लगा था ये इस हद तक नहीं जाएंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं किसे जाकर अपना दुख सुनाऊं, किसे बताऊं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं इस तरह गुट गुट के नहीं मर सकती। वैसे ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसमें मैं सिर्फ रोऊं, जुल्म बर्दाश्त करूं। इससे अच्छा मैं इस रिश्ते को ही खत्म कर दूं। अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया लोगों का जुल्म। कुछ तो सोचना पड़ेगा। इन लोगों को मैं सबक सिखा के रहूंगी। अरे तू कहाँ चल पड़ी? ये मेरा घर है कोई होटल नहीं कि खाया पिया और मुंह उठाया पर चल पड़ी। कहाँ जा रही है बता मुझे पहले। अरे कुछ तो बोल, या फिर दोबारा मार खाने को रद्द है जिस तरह तो बिना जवाब दिए मुझे जा रही है। बुलाऊं अपने बेटे को दोबारा? बोलती क्यों नहीं कुछ? माँ जी मैं इस घर की बहू, कोई गुलाम नहीं। और वैसे भी ये धमकियां किसी और को दीजिएगा। अच्छा तो तुझे ज्यादा ही पार लग रहे हैं। अब इतनी हिम्मत बढ़ गई जो मुझे बिना बताए और मुझसे बिना पूछे इस तरह दंदनाती बाहर घूम रही है। जरा आने दो मेरे बेटे को, यकीनन कहीं मुंह काला करने जा रही होगी। आज तो इस बहू ने मुझे हैरान ही कर दिया। कैसे बिना पूछे बिना बताए ऐसे दंदनाती बैग लेके बस चलेगी। ऐसा करती हूँ अपने बेटे को कॉल करके बताती हूँ। मैं क्यों इंतजार करूँ कि वो शाम को आएगा तब बताऊंगी। अभी खबर लेती हूँ मैं। अरे बेटा कहाँ है तू? बस जल्दी से घर आ जा। हाँ, अरे तुझे नहीं पता क्या हुआ है आज? तेरी बीवी मुझसे बिना पूछे बिना बताए पता नहीं कहाँ मुंह काला करना कर चलेगी। मैं कहती हूँ तू जल्दी गारा और आकर इसका पीछा कर। यकीनन अपने यार से मिलने गई होगी, इसलिए तू प्राप्ति तेरे नाम कर नहीं रही। हाँ? क्या इसकी इतनी हिम्मत? माँ सही कह रही है तुम। अभी आकर इसकी लगाता हूँ मैं क्लास, बल्कि आज तो मैं इसे जान से ही मार डालूंगा। हाँ जल्दी आ जा, काम मुके इसका। अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ अभी तक वापस नहीं आई ना। मुझे तो ऐसे लगता है मैं अपने दोस्तों को साथ लेता हूँ और इसे ढूंढने निकलता हूँ। कहाँ छुपी होगी आखिर? अरे छोड़ बेटा, लौट के तो घर को वापस ही आएगी ना। तो जरा इंतजार कर, उसके बाद कोई ठिकाना भी नहीं है। अगर तू बाहर जाएगा तो खामखा तेरी खुद की बेइज्जती होगी। उसे क्या कहना है किसी ने? बेहतर ये कि घर आए तो ही कुछ करना उसका। ठीक है माँ, लेकिन आप आज ना कुछ मत कहिएगा। आज फैसला होके रहेगा, आर या पार। या तो वो इस घर में रहेगी या फिर तलाक होकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मेके दफा होगी। क्योंकि अगर आज उसने अपनी माँ से कह के वो जमीन जायदाद मेरे नाम ना करवाई तो लाते जूते मार के इस घर से दफा कर दूंगा, बल्कि इसके मेके फेंक कर आऊंगा इसको। सही कह रहा तू, और इसे बदनाम भी कर देंगे कि इसने इसको घर से बाहर निकाला
क्योंकि ये अपने यार के साथ पकड़ी गई थी। कैसा? वाह माँ, आइडिया तो बिल्कुल अच्छा है ना, यही बदनाम होगी। आ गई तू? अरे कहाँ मुंह काला करके आ रही है? लगता है जब तक तुझे अच्छे से मार ना पड़े तो तब तक तुझे चैन नहीं मिलता। सोच रही होगी सुबह मार कम पड़ी है, अब दोबारा खाने कराता होगा। और बेटे ये भी पूछ, किसकी इजाजत से गई थी? अरे मुझसे तो कुछ पूछा गीछा भी नहीं, बस मुंह उठाया और चली गई। अरे माँ आप चिंता ही न करें, आज तो मैं इससे एक एक हिसाब लूंगा ताकि इसे पता चले कि मेरी माँ के साथ जुबान चलाने की क्या कीमत है। हाँ बेटा मार इसे। रुक जाएं, मिस्टर, आप इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। मार खाने की जरूरत तुम्हारी पत्नी को नहीं बल्कि तुमको है। और तुम एक औरत होकर कैसे एक औरत के ऊपर अत्याचार बर्दाश्त कर सकती हो? वो मैं मार नहीं रहा था। जस्ट शट अप। अब जो भी कहना ना थाने जाके कहो। तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अरे बहू तू ही बता, गलत फहमी हो रही है इनको। हम तो कितना अच्छे से रहते तुझसे। अरे से कुछ कहे ना, हम थाने नहीं जाना चाहते। ये तो ना आप थाने जाकर बताइएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं। अभी यहाँ पर कोई सवाल जवाब नहीं होगे, चलिए। अरे बहू तू तो सीरियस होगी। हर घर में छोटी मोटी रोक टोक होती रहती है। ये मतलब ना तो पुलिस बुला ले और अपने पति को और अपनी सास को थाने भिजवा दे, अच्छा थोड़ने लगेगा। अरे ये तेरा पति है, तेरा सरबरा है, सब कुछ है। क्या कहा माँ जी आपने कि हर घर में छोटी मोटी रोक टोक होती रहती है? आपके बेटे ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे बल्ले से मारा है। हाथ देखे मेरी हालत, मुझे लो लुहान कर दी। ये छोटी मोटी रोक टोक है? और आप इसे रोकने की बजाय हमेशा शह देती थी, और आपको लग रहा है छोटी मोटी नोकझोंक है जब पुलिस वाले सामने आ गई हैं। वाह माँ जी, अगर ये इतनी छोटी मोटी रोक टोक है, ये बस ऐसे ही कुछ करता था, तो जब आप थाने जाकर ये सारी मार बर्दाश्त करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कैसी ये रोक टोक थी। हाँ? और तुम्हें देखना मैं कैसे हमेशा के लिए जेल बचाती हूँ, कभी बाहर निकलने दूंगी नहीं। अरे तुम्हारे दिए हर जख्म का हिसाब लूंगी। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे लावारिस समझ रखा था। अच्छा किया मैंने जो कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे प्यार के काबिल ही नहीं। हाँ, अच्छा करता था जो मैं तुझे मारता था। तुझे इससे लायक होना चाहिए था। कैसे पुलिस वाली, जरा इज्जत का ख्याल है ही नहीं अपनी पति की। हाँ, तुम मुझे क्या प्यार करोगे? तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो। जरा मेरे प्यार को और मुझे डिजर्व करते ही नहीं। तुम जैसा नीच और घटिया आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा, जो अपनी पत्नी की जायदाद हड़पना चाहता है और बाद में उसको मारने की प्लानिंग भी बना रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी या खुद को मरने देख सकती हूँ मैं? अब जेल में जाकर अपने सारे शौक पूरे करना। अब मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं चाहिए और तुम्हारा साथ भी नहीं चाहिए। मैं खुद तुम्हें खुला के पेपर भिजवा दूंगी। तुम क्या मुझे दोगे तलाक? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, और मेरे पास सारे सबूत भी हैं कि कैसे ये मुझे मारता पीटता है, और इसकी माँ भी इसमें शामिल थी। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि हर एक को पता चले कि इसकी कितनी बड़ी सजा है। कोई औरत अपने पति के हाथ इस तरह मरे ना। चलो मेरे साथ, तुम दोनों को तो लंबा जाना पड़ेगा जेल में। अरे बहू मैडम, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत थी तो आप बिला झिझक हमें बता सकती हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, अपनी माँ के यहाँ चली जाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को निभा सकूं, लेकिन नहीं निभा सकी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि औरत इतनी कमजोर नहीं होती कि वो चुपचाप हर वक्त मार खाती रहे। जुल्म भी एक हद तक बर्दाश्त करना चाहिए। ज्यादा जुल्म बर्दाश्त करना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आप अपने घर को बचाने की कोशिश करें, लेकिन ये ना हो कि घर को बचाते बचाते आप खुद को ही खत्म कर डालें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और ऐसी मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।